Okay, so here is the detailed structure. Here is the detailed syllabus structure that I have given it on Monday. And we have started with introduction to SAP. SAP history, release versions, R3 architecture is something that I will cover later on. It's a little theory type of topic. I don't want everything to be theory. And I've explained what is the SAP project phases. ASAP methodology, commonly used abbreviations, is something that we will keep on covering during the course. Then we will start off with the enterprise structure. We will see any kind of a system, any type of a system, any type of a software. You have to start off by creating the ground based approach. Like you have to first create the base. So in SAP, the base for any organization, like let's say if I want to hire any employee, अगर मेरे को किसी employee को hire करना है और उसके ऊपर कुछ operations को perform करना है, for an example उसका payroll मेरे को run करना है या उसको time management का मेरे को कुछ उसके अंदर perform करना है, तो मेरे पास कुछ structure उसके लिए system के अंदर होना चाहिए. Those structures are nothing but like I have to have a dedicated enterprise structure, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद में एक और चीज होती है कि पेरोल स्ट्रक्चर. ठीक है, बट ओनली आफ्टर दैट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप टू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. देन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग्स. Then we will move on to the time management. Time management क्या होता है? And then at last we will cover the payroll part of things. And after payroll we will cover some of the reporting and technical part of things जो कि apart from द यूजुअल स्टफ है कि उसके अलावा क्या क्या उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, एंड विच आर द पार्ट्स that you generally need to know of. Okay, so in today's topic, let's talk about employee related details. In today's topic, we will talk about employee related details. Okay, अपन ने देखा था कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रुपिंग क्या होती है, enterprise structure and personal structure, or the employee structure, or the employee group and subgroups. But and what we wanted to cover is also at the same time the organization structure, कि organization structure क्या होता है और उसको SAP में कैसे create करते हैं. But first things come first. I have a I have this question. What are employee related details? What are employee related details? And then second question that I'm having, in SAP, how the employee related details gets saved. दो क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन उसका फॉलोअप क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स एसएपी में कैसे सेव होती है. अगर मेरे पास में कोई एम्प्लॉय है एसएपी के अंदर और उसकी अगर एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स मुझे सेव करनी है तो मैं कैसे करूंगा. दिस इज व्हाट माय सेकंड क्वेश्चन इज. सो कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स. Can anyone give me एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स, क्या क्या एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए सिस्टम में, उसको कोई मेरे को एग्जांपल दे सकता है. ओके, Employee name, address, सो वन बाय वन. या, फुल नेम, address, एड्रेस, करेक्ट. व्हाट एल्स? position, पोजीशन. ओके, दैट ओके, ठीक है, विल कैटेगराइज इट देन. पोजीशन, व्हाट एल्स? फुल नेम, एड्रेस, पोजीशन, व्हाट एल्स? education, एजुकेशन डिटेल्स, करेक्ट. experience details also, एक्सपीरियंस डिटेल्स, करेक्ट. व्हाट एल्स?
देयर कैन ऑल्सो बी द डिटेल्स लाइक कि ठीक है, अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स भी होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स ही हों। एवरीथिंग, लाइक देयर कैन बी मैनी मोर थिंग्स, राइट? क्या हो सकती है वो दूसरी चीज़ें, क्या हो सकती है? चलो, अगर पर्सनल डिटेल्स के बारे में ही और थोड़ी बात की जाए तो उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? ये तो सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस अपन ने कवर किए हैं अभी तक के। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट एल्स? Employee code. सॉरी? Employee code. एम्प्लॉय Employee. कोड? Yeah. You mean to say a unique ID, right? Yeah. Employee's unique ID. Can anyone tell me कि unique ID क्या होता है? What is the concept of uh, okay, first of all let me write it. Employee code, it is generally also known as a unique ID for an employee, and it is in SAP terms, SAP की terms के अंदर उस चीज को बोलते हैं पर्सनल नंबर और पर्सनल नंबर और आईडी, पर्सनल आईडी। ओके, तो अच्छा मेरे को ये बात बताओ, एम्प्लॉय कोड से क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय कोड क्यों चाहिए हमें? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कोड? व्हाई डू वी नीड एन एम्प्लॉय कोड? For identification of that particular employee. बट आइडेंटिफिकेशन तो मैं फुल नेम से भी कर सकता हूँ। बट कभी कभी जो है एम्प्लॉय के फुल नेम भी सेम हो जाता है। करेक्ट। सो इसके लिए हर एक एम्प्लॉय को मेरे को एक ऑथराइजेशन कोड या फिर एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अच्छा, एसएपी के केस के अंदर क्या होता है, एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी तो होती है, प्लस एक यूनिक यूजर आईडी भी होती है सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए। यूनिक एसएपी यूजर आईडी, जो लोग एसएपी सिस्टम यूज करते हैं उनके लिए एक यूनिक एसएपी यूजर आईडी भी होती है। जैसे कि मेरे केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं किस यूजर आईडी पे लॉगिन कर रहा हूँ देखते हैं। ये मेरी यूजर आईडी है, दिस इज द यूजर आईडी दैट आई एम यूजिंग, दैट इज HCM यूजर 1। दिस इज माय यूनिक आईडी विच थ्रू विच आई एम लॉगिंग इन। ओके, तो ये मेरी लॉगिन करने की यूनिक आईडी है। प्लस अगर मैं PA20 के अंदर जाके देखता हूँ अगर किसी एम्प्लॉय को, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं किसी एम्प्लॉय का, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ओके, सो ये जो पर्सनल नंबर दिख रहा है, दिस पर्सनल नंबर, दिस इज एक्चुअली द यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस एम्प्लॉय। ये किसी का भी सेम नहीं होगा। ओके, सो व्हाई डू वी नीड इट टू बी द यूनिक वन? हमको यूनिक इसके लिए करना है क्योंकि देखो, नो टू एम्प्लॉयज विल हैव द सेम सैलरी। आई मीन लाइक हो भी सकती है, बट हाउ डू आई डिफरेंशिएट अमंग एम्प्लॉय कि ओके, ये एक सुरेश है, सुरेश कुमार, हिज नेम इज सुरेश कुमार, द अदर पर्सन नेम इज ऑल्सो सुरेश कुमार, बट वन इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अनदर वन इज एन engineer. I would only differentiate it through the help of a unique ID or the personal number in the case of SAP. Okay, this concept is pretty much self-explanatory. कुछ इसमें डाउट है? और what No, else? sir. और क्या क्या हो सकता है? No, sir. What else? और क्या क्या हो सकता है? और क्या चीज हो सकती है इसके अलावा? सैलरी, हाउ कैन वी फॉरगेट सैलरी कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होगी?
In SAP, we call it also as basic pay. What else? और क्या चीज होगी? What can be the other employee related details? Can we call it the shift timings? Can we call the attendances? कि वो क्या attendances दे रहा है? Can we say absences? कि उसके लिए कौन कौन सी absences available है? Can we say absence quota? कि उसके लिए कौन कौन से absence quota available है? हर एक individual employee के लिए अलग अलग absence quota available होंगे ना? Correct? Like I mean ऐसा कर सकते हैं, but एक group of employees के लिए भी same रख सकते हैं. But let's say अगर एक employee ने 10 दिन की छुट्टी ले ली है, तो दूसरे एम्प्लॉय के एब्सेंस कोटा में से तो डिडक्ट कर नहीं सकते हैं, तो दैट्स व्हाई. एंड देन द अटेंडेंसेस कोटास. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? टैक्स रिलेटेड डिटेल्स. टैक्स रिलेटेड डिटेल्स. उसके अलावा और क्या हो सकता है? आधार नंबर. व्हाट एल्स? उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? अच्छा, here we are not mentioned apart from contact details, we have not mentioned email ID, but let's maintain email ID over here. अच्छा, still there is a couple of interesting things or couple of important things which are left. Guess some of those important things. कि हर एक एम्प्लॉय का कौन कौन सी important details होंगी जो कि सिस्टम में होनी चाहिए. There should be one important detail should come directly over here. अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, but like it's very very important. Okay, let me give you bank account details. करेक्ट. अगर एम्प्लॉय की बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं होगी तो अपन सैलरी किस में क्रेडिट करवाएंगे? करेक्ट और नॉट? Yes, sir. बैंक डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, तो देखो, देयर कैन बी n नंबर ऑफ सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, एंड देयर कैन बी n नंबर ऑफ सच such important details related to the organization that this employee is working for. Okay, तो यहाँ पे तो अभी जैसे मैंने एड्रेस मेंशन किया है, इसके अलावा जैसे कि मैं ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता हूँ जनरली कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर काम कर रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर काम कर रहा है. इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें और भी मेंटेन करते हैं यहाँ पे कि भाई कौन से कॉस्ट सेंटर के अंदर वो बिलोंग करता है. दीज आर सम ऑफ द SAP रेलेवेंट डिटेल्स, एंड देयर कैन बी n नंबर ऑफ सच मोर डिटेल्स. ओके, तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना, जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स होंगी SAP के अंदर, जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स होंगी SAP में, वन सेकेंड, लेट मी, जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स SAP में होंगी, those details are generally stored in the form of info type. Okay, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स होंगी, जैसे एक एम्प्लॉय है उसकी ये सारी के सारी डिटेल्स हैं, तो उसको अगर मेरे को SAP में स्टोर करना है तो उसको मैं कैसे करूंगा? आई विल स्टोर ऑल ऑफ दोज डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्फो टाइप. इन्फो टाइप करके एक चीज होती है, इट इज नथिंग बट अ 4-digit कोड, and info type is used to store all the employee related details or employee related information in SAP portal or in an SAP system. Okay, so I'm saying in SAP how the employee related details get saved. In SAP, employee related details are saved in the form of info type. अच्छा,
there is a few things about info type. What is an info type? Info type is nothing. Info type is nothing but a 4-digit code. Info type is nothing but it is a 4-digit code, or I can simply say which is used to store information related to employee, information related to employee, and what is the second thing about info type? The second thing about info type is for the different informations like organizational details, personal details, organizational details, personal details, bank details, address details. For the different information like organizational details, personal details, okay, let's categorize. Let's say it like that. There are info types are categorized separately. Info types are categorized separately to store the informations like organizational details, personal details, bank details, address details, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लेट्स से अगर मेरे को एड्रेस देखना है एम्प्लॉय का तो उसके लिए एक अलग इन्फो टाइप होगा. अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन यूनिट देखनी है तो उसके लिए एक अलग इन्फो टाइप होगा. एक कॉस्ट सेंटर अगर मुझे देखना है तो उसके लिए एक अलग इन्फो टाइप होगा. पोजीशन अगर मुझे देखनी है तो उसके लिए एक अलग इन्फो टाइप होगा. एजुकेशन डिटेल्स अगर मुझे देखनी है तो उसके लिए एक अलग इन्फो टाइप होगा. सो इन्फो टाइप itself can be categorized separately to store the informations like organizational details, personal details, bank details, address details, etc. इसमें कुछ डाउट है? For an example, info type 0001. This is for organizational details. This is for organizational details. For an example, info type 0002. This is for personal data. Personal data of employee. Personal data of that employee. For an example, info type 6, 0006 info type is for address details. Similarly, 0007 info type is something which is called as planned working time. किस time पे that employee will work, planned working time or planned working details. ओके. सिमिलरली बैंक रिलेटेड डिटेल्स के लिए अलग इन्फो टाइप है, एब्सेंसेस के लिए अलग इन्फो टाइप है, बेसिक पे के लिए अलग इन्फो टाइप है विच इज 0008, जिसमें उसकी सारी की सारी सैलरी रिलेटेड डिटेल सेव होंगी. सिमिलरली देयर इज अनदर इन्फो टाइप विच इज लेट्स से इन्फो टाइप 14. इन्फो टाइप 14 इज फॉर द रिकरिंग पेमेंट, रिकरिंग पेमेंट, and then info type 15 is for the additional payments. Additional payments, or it is also known as the one-time payment, one-time bonus types of payments, one-time bonus types of payments.
व्हाट इज द रिकरिंग पे? रिकरिंग पे इन डिडक्शन. रिकरिंग पे मतलब अगर मेरे को कंटिन्यूसली लेट्स से क्वार्टर बाय क्वार्टर उस एम्प्लॉय को पेमेंट बार बार करना है या कुछ उसका डिडक्शन करना है, तो फॉर दैट वी यूज जनरली रिकरिंग पेमेंट और डिडक्शन इन्फो टाइप, व्हिच इज इन्फो टाइप 14, and info type 15 is for the one time bonus payment. Similarly, there are n such number of info type which are available in SAP. There are n number of such info type which are available in SAP. To be precise, there can be, to be precise, there can be 5000 plus info types. क्या मुझे सारे के सारे याद करने की जरूरत है? नहीं, मुझे सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है. आई हैव टू जस्ट नो द बेसिक वंस. आई हैव टू जस्ट नो द बेसिक वंस. लेट्स से 100 200 मेरे को वो बेसिक्स आने चाहिए. बिकॉज सी, all of these 5000 info types generally also contain country specific details as well. Country specific details as well. अब कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स क्या होगी? अब देखो एक एग्जांपल इसका ये समझो कि अगर देखो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर मुझे मालूम है कि फॉर्म 16 इज इम्पोर्टेंट. फॉर्म 16 के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है? सेक्शन 80C. सेक्शन 80C इज अनदर वन विच इज इम्पोर्टेंट. ओके, अच्छा, बट अब इसके लिए जो इंडिया रिलेटेड कंट्री स्पेसिफिक सेग्रीगेशन होता है, इंडिया रिलेटेड इन्फो टाइप्स आर info type 0 580 to 0 589. ये इंडिया रिलेटेड टैक्स से जितने भी इन्फो टाइप होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं. बट देन देर आर सम ऑफ द यूएस स्पेसिफिक एज वेल. To be specific, there are something 0 to 89. Okay, and then there are a couple of things like membership fees, and then there are a couple of Canada ones which are like garnishment. 401 is garnishment. So see, आपको सारे इन्फो टाइप याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि SAP प्रोवाइड सपोर्ट्स टू 60 प्लस कंट्रीज. तो सारे के सारे इन्फो टाइप मतलब फिर उसके अंदर कंट्री स्पेसिफिक सेग्रीगेशन भी आ जाता है. You have to know the basic ones, and since we are doing this course to understand the India payroll, so we have to know these ones. Okay, now how do I execute info type? मैं देखूंगा कैसे SAP के अंदर कि info type कहाँ होते हैं. अच्छा, from first day onwards when we actually started doing little bit of practical पिछले 2-3 क्लासेस के अंदर, तो हमने एक चीज जानी थी कि भाई टी कोड करके कोई चीज होती है. टी कोड इज व्हाट? टू एक्सेस द फीचर विद इन SAP. SAP के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी का मुझे यूज उठाना है, उसके लिए मुझे टी कोड उसके लिए मैं टी कोड कर सकता हूँ. इसके अलावा अगर मेरे को टी कोड यूज नहीं करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे जाके स्क्रॉल डाउन करके भी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. दैट आई नो. ओके, करेक्ट. अपन ने टी कोड पढ़ा था. टी कोड क्या होता है? हियर वी हैव रेड अबाउट टी कोड, राइट? ट्रांजैक्शन कोड क्या होते हैं? गाइस, एनी आंसर? देखो डाउट है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. टी कोड से मतलब जो रिक्वेस्ट नंबर होता है वो डिस्प्ले होने के लिए होता है, जैसे कि 409. और तो इंपोर्ट के लिए जो होता है वो इस जैसे वो कोड्स होता है, रिक्वेस्ट नंबर्स जो होते हैं. ओके, अपन ने SPRO भी पढ़ा था. SPRO क्या था? क्या होता है SPRO? यहाँ पे मैंने टी कोड समझाया था, राइट? टी कोड क्या करता है? वन सेकंड, मेरे को डेफिनेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या उसमें? लाइक जस्ट वांटेड टू आस्क. Okay, so I'll write down the definition for you guys, just in case you won't get any problem from next time onwards.
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी टी कोड is nothing T code is nothing but a four digit transaction ID or name to access the various features provided in SAP. It's as simple as that. अच्छा, अब मैं क्या सिर्फ टी कोड ही यूज करके अलग अलग फीचर्स को, अच्छा अभी मेरे को मालूम है कि दो तरह की स्क्रीन्स होती है, राइट? क्या कौन सी होती है? एक होती है SAP इजी एक्सेस, और एक मुझे पता है एक कौन सी होती है, SAP SPRO, राइट? ये तो मैंने बताया था यहाँ पे, एक इजी एक्सेस मेनू होता है और एक SPRO मेनू होता है, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, इजी एक्सेस मेनू के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा एंड यूजर जो होता है सिर्फ वो डेटा एग्जीक्यूट करके चीजों को सेव करता है, बिजनेस प्रोसेसेस को रन करता है, करेक्ट? बिजनेस प्रोसेसेस को रन करना हुआ, बिजनेस प्रोसेसेस मतलब क्या, कि चलो भाई किसी इंप्लॉय को हायर करना हो गया, चलो भाई किसी इंप्लॉय का पेरोल रन करना हो गया, चलो भाई किसी इंप्लॉय का टाइम शीट वगैरह सेव करना हो गया, बिजनेस प्रोसेसेस तो यही होती हैं। और कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट वो होता है जो कि एंड यूजर के लिए एसएपी सिस्टम को कस्टमाइज करता है। कहाँ पे कस्टमाइज करता है? एसपीआरओ स्क्रीन के अंदर, एसपीआरओ स्क्रीन के अंदर जाके, एसएपी रेफरेंस स्क्रीन के अंदर जाके ये सारी के सारी फंक्शनैलिटीज के थ्रू मैं सिस्टम को कस्टमाइज कर सकता हूँ फॉर एज पर व्हाट माय क्लाइंट नीड्स, एज पर व्हाट माय क्लाइंट नीड्स, जो भी मेरे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं सिस्टम को कस्टमाइज कर सकता हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस वन अगेन, तो मेरे को पता है कि एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स मेरे सिस्टम के अंदर जो भी होंगी उसको, वो सारी के सारी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स जनरली स्टोर होंगी। देयर इज अ 4 digit कोड व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फो टाइप। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज इन्फो टाइप एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज टी कोड। टी कोड इज नथिंग, टी कोड इज अ 4 digit कोड व्हिच इज प्रोवाइडेड टू एवरी फीचर। जैसे कि अगर मेरे को पर्सनल एक्शन रन करना है तो उसका टी कोड PA40 है, या तो मैं PA40 डाल के यहाँ से रन कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से भी इसको रन कर सकता हूँ डबल क्लिक करके। ओके, तो जैसे डबल क्लिक करके मैंने अभी ये रन किया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे रन डबल क्लिक नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके PA40 करके एंटर करूँगा एंड वही स्क्रीन के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा। So T code is the shortest way. T code is the shortest way to run the functionalities within SAP. Functionalities को रन करने के लिए T code is the shortest way to run the functionalities within SAP. Okay? अब देखो, जितने भी info type होते हैं, how can I execute it? अच्छा, मेरे को जैसे एक एम्प्लॉई है उसकी डिटेल्स को सेव करना है या उसकी डिटेल्स को चेंज करना है, तो वो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट? हाउ डू आई एग्जीक्यूट द एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन? अच्छा, अब वापस से मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ इन्फो टाइप, दैट इज करेक्ट। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इन्फो टाइप के फॉर्म में सेव होती है, तो फिर बात तो एक ही हुई यहाँ पे, एसएपी की टर्म्स में मैं उसको इन्फो टाइप बोल रहा हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ? मेरे को एक एम्प्लॉई है, लेट्स से एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है सुरेश कुमार। ओके, मेरे को इसका एड्रेस चेंज करना है, या मेरे को इसकी सैलरी चेंज करनी है, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? So I can use, so these are the four important features in SAP to execute the info type. Change master data,
PA20 display master data, PA10 create master data of employee. ओके देखो, ये फीचर्स हैं और ये इनके टी कोड्स हैं, ये आगे इनके टी कोड्स हैं और ये फीचर्स हैं। किस तरीके से मैं इसको यहाँ पे जाके भी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके भी यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्टली यूज करना चाहूँ तो आई कैन यूज दिस टी कोड एज वेल। ओके, सो लेट्स keep it into a particular box and here it is। तो जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स हैं, जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स हैं, मुझे पता है कि वो इन्फो टाइप के फॉर्म में स्टोर होती है। और अगर मुझे इन्फो टाइप्स को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ये चार फीचर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन वन है PA30। देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पे PA30 के अंदर जाऊंगा, PA30 मेंटेन। अब यहाँ पे ऊपर जाके मैं कोई एक एम्प्लॉय लूंगा, ठीक है। मैंने एक एम्प्लॉय ले लिया, लेट्स से मेरे पास में ये एक एम्प्लॉय आईडी है। अब जैसे ही मैंने ये एम्प्लॉय यहाँ पे लिया तो उसकी यहाँ पे ये शॉर्ट डिटेल्स आ गई। ओके, एम्प्लॉय ग्रुप कौन सा है, एम्प्लॉय सब ग्रुप कौन सा है, पर्सनल एरिया कौन सा है, पर्सनल सब एरिया कौन सा है, ठीक है। अब मैं इन्फो टाइप को कहाँ पे देख सकता हूँ, मैं इन्फो टाइप को यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे जाके इस साइन के ऊपर मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखो, इट गिव्स मी ऑल द नंबर ऑफ इन्फो टाइप विच आर अवेलेबल विच आई कैन सेव फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय। it gives me all the number of info types which are available and I can save for this particular info type for this particular employee। अब जैसे कि अगर मुझे चेक करना है कि इसकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, सो आई कैन क्लिक ऑन टू द 002 इन्फो टाइप पर्सनल डेटा एंड यहाँ पे जाके मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले का मतलब क्या होगा, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता उसके अंदर। यहाँ पे ये चेंज करके एक्सेस है, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो आई कैन चेंज इट, आई कैन चेंज दिस एम्प्लॉयज, ये इसकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, लेट्स से आई एम नेमिंग दिस एम्प्लॉय सुरेश कुमार, so I can change the details of this employee, save। So what I can do, I have now changed this the employee of this I've changed the personal name of this employee, this particular employee। Similarly, अगर मेरे को कोई और चीज इसकी change करनी हो, let's say I want to change the address of this employee, so I'll go into the address info type, 0006 info type, and I can go on to the change one, and now I can say like okay, let's say OP Road, Vadodara, save। सो इस रिकॉर्ड हैज बीन चेंज्ड। अच्छा, मेरे को डिस्प्ले करना हो कि क्या है तो मैं डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब देखो, ये डिस्प्ले में मैं जैसे ही गया तो मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, आई एम नॉट इनटू एन एडिट मोड। एडिट मोड में जाने के लिए मेरे को वापस से बैक जाके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। एडिट मोड में जाके फिर अगर मेरे को लग रहा है तो मैं जाके इसके अंदर चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे फिर से। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन SAP। ये जो चार ट्रांजैक्शन कोड हैं, दैट इज दिस फोर टी कोड्स, और these four features are very very important features from a master data perspective। सारा के सारा काम पर्टिकुलरली इन्हीं चार फीचर्स के थ्रू होता है, दैट इज PA20, PA30, PA10 एंड PA40। PA40 इज फॉर एक्शन, PA20 इज फॉर डिस्प्ले। अब देखो, यहाँ पे जैसे मैं जाके डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, इफ आई वांट आई कैन सिंपली एग्जीक्यूट PA20 एंड PA20 के अंदर एक एम्प्लॉय लेके मैं जैसे अगर मेरे को वापस इसकी बेसिक पे देखनी है कि इसकी सैलरी क्या है, तो आई कैन एंटर 0008 इन्फो टाइप एंड आई कैन गो ऑन टू द डिस्प्ले, and in display section it gives me the result that okay, this current at the moment this employee is having the salary of 6 lakhs, just to give you an idea, or whatever it may be। Okay, I'll go back,
सिमिलरली अगर मेरे को बैंक रिलेटेड डिटेल्स इसकी देखनी है तो आई कैन सिंपली क्लिक, आई कैन सिंपली गो 0009 इन्फो टाइप bank details and I can go on to display and now I can check the bank related details. इस केस के अंदर मैंने कैश रिलेटेड पेमेंट सेव करके रखा हुआ है. अभी मैंने यहाँ पे कोई भी उसका एक अकाउंट डिटेल सेव नहीं किया हुआ है बिकॉज दिस इज अ डमी एम्प्लॉय, राइट. सिमिलरली लेट्स से अगर मुझे देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स कौन सी हैं, सो आई कैन टेक 0001 इन्फो टाइप एंड आई कैन सी द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डिटेल्स ऑफ दैट इन्फो टाइप. ओके, तो नाउ लेट्स गो अगेन बाय वन. ये अपन ने दोनों कवर किया. PA30 से मैं चेंज कर सकता हूँ, PA20 से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ. अच्छा, PA10 से मैं क्या कर सकता हूँ? PA10 से अगर मेरे को उसकी पर्सनल फाइल देखनी है तो आई कैन गो ओवर देयर, कैन चेक इट एंड देन कैन क्रिएट दोज थिंग्स. मैं वापस से नए तरीके से वो डेटा क्रिएट कर सकता हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. So see, here are the details. Similarly, what is then PA40 किस चीज के लिए? Again, let's go. Okay, let's execute. Okay, चलो यहाँ से execute करते हैं. डबल क्लिक किया PA40 पे. देखो, PA40 is used to perform action on an employee. क्या मतलब है इसका? PA40 is used to perform action on any employee. ओके, अभी देखो एक्शन का मतलब क्या हो गया. अभी देखो, अगर मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है तो मैं हायरिंग एक्शन की बात करूंगा कि मुझे नए एम्प्लॉयज को हायर करना है. अच्छा, मेरे पास में एम्प्लॉय है बट उसमें अगर मुझे उसे टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेशन एक्शन. अगर मुझे कोई एम्प्लॉय है अगर उसको रीहायर करना है तो रीहायर एक्शन. अगर मुझे कोई एम्प्लॉय है उसको रिटायर करना है तो रिटायरी एक्शन. अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी पोजीशन को मुझे चेंज करना है, लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो एक डिपार्टमेंट से मूव होके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाए, तो लेट्स से वी कॉल इट एज अ चेंज ऑफ डिपार्टमेंट. तो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट एक्शन. Okay, so all of those things I generally can do through the help of PA40. All of those things I generally can do through the help of PA40. Any doubt? No, sir. कुछ भी डाउट? अच्छा, अभी ट्रांजैक्शन कोड को लेके डाउट है क्या? टी कोड क्या होता है? कुछ भी नहीं है. देखो, सीधी सिंपल सी बात है भाई. एसएपी के अंदर मुझे फीचर्स को यूज करना है. फीचर इज नथिंग, मतलब ठीक है, एसएपी की फंक्शनैलिटीज को मेरे को यूज करना है. देयर आर टू वेज. या तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करके फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकता हूँ. चलो ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे पेरोल रन करना है तो पेरोल के अंदर गया, एशिया स्पेसिफिक में गया, इंडिया के अंदर गया, पेरोल अकाउंटिंग के अंदर गया, सिमुलेशन में गया और मेरे पास में पेरोल रन करने की पूरी स्क्रीन आ गई. यहाँ पे मैं जिस एम्प्लॉय का पेरोल रन करना है वो डालूंगा, एम्प्लॉय किस पेरोल एरिया को बिलोंग करता है वो डालूंगा, उसका रीजन क्या होगा, ऑफ साइकिल है कि नहीं है वो डालूंगा. डिस्प्ले लॉग मतलब लॉग मतलब मेरे को देखना है कि बैकएंड में क्या क्या कंपोनेंट्स उसके कैलकुलेट हो रहे हैं, क्या क्या सैलरी कंपोनेंट्स उसको मिल रहे हैं, क्या क्या डिडक्शन उसका हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ तो डिस्प्ले लॉग भी कर सकता हूँ. अगर मेरे को नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ पेरोल ही रन करना है तो आई कैन अनचेक इट, जरूरत नहीं है. एंड दिस इज आई एम एग्जीक्यूटिंग इन अ सिमुलेशन मोड, सो दिस इज अ टेस्ट रन. ओके, अच्छा, तो ये तो मैंने यहाँ से जाके किया. अब अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना है, मतलब मेरे को इतना स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, तो आई कैन सिंपली गो इनटू द सर्च बार, आई कैन टाइप दिस टी कोड फॉर पेरोल, that is PC00 underscore M40 underscore CALC underscore SIMU. तो ये इसका टी कोड हो गया और मैं डायरेक्टली उस स्क्रीन के ऊपर आ गया. ठीक है, तो टी कोड इज नथिंग. टी कोड इज द शॉर्टेस्ट वे टू एग्जीक्यूट फीचर्स विद इन एसएपी. शॉर्टेस्ट वे टू एग्जीक्यूट फीचर्स विद इन एसएपी, अगर मेरे को स्क्रॉल डाउन करके नहीं जाना है तो. अच्छा, एक और चीज, इट विल नेवर बी द 4 डिजिट ओनली, इट कैन बी द लॉन्गर देन दैट.
4 or more, 4, or let's say we call it as a 4 plus digit. To access the various features provided in SAP quickly. That is all the T code is all about. तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया कि SAP में सारी के सारी चीजें इन्फो टाइप करके एक 4 डिजिट कोड होता है, उसके अंदर सेव होती है. एंड अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात करूंगा तो देन देर आर दीज इन्फो टाइप्स विच आर द इम्पोर्टेंट इन्फो टाइप्स. अगर मेरे को एक और बार चेक करना है, लेट्स से अगर मैं वापस से वही एम्प्लॉय ले रहा हूँ, मैं PA30 के अंदर जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस एम्प्लॉय, let's say I want to save 580 info type for this particular employee, which is nothing but the previous employment tax details. Previous employment tax details. I can go on to the create, क्योंकि ये अभी तक के created नहीं है. I can simply go on to the create. यहाँ पे सारी के सारी चीज़ें मैं उसकी जाके सेव कर सकता हूँ कि ठीक है, प्रॉफिट एंड फंड कितना था उसका, अभी क्या डिटेल्स हैं उसकी, या फिर VRS एक्सेप्शन क्या है, ग्रेच्युटी क्या है उसकी, उसके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहे हैं क्या, कोई अगर उसका वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट है क्या, वो चल रहा है क्या. तो ये सारी के सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेव करूँगा. ओके, सो इसके लिए कौन सा इन्फो टाइप है? इसके लिए है 580 फॉर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिटेल्स. लेट्स सी 581 which is for the housing and allowances, HRA. So for saving all the HRA related details, I will use 581 for this particular employee. अच्छा, अब ये जैसे एम्प्लॉई इंडिया का है, राइट? सो आई विल गिव यू अगेन एन एग्जांपल, जैसे कि आई विल शो यू दिस एम्प्लॉई बिलोंग्स टू इंडिया. One second here. Can you see India permanent? So what I am saying, this employee belongs to India. अच्छा, अब अगर मैं इसका यूएस रिलेटेड इन्फो टाइप जो होता है, दैट इज लेट्स से कि अगर मैं 461 जैसे ये टैक्स असाइनमेंट कनाडा है, ठीक है, अगर मैं ये सेव करने जाऊंगा ना, तो देखो ये मुझे सेव करने ही नहीं देगा. क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि ये एम्प्लॉई इंडिया रिलेटेड है. सो अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर कोई कनाडा रिलेटेड एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए मैं सेव कर सकता हूँ. जैसे कि ऑन अ वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू कि SAP जो सिस्टम है, इट इज वेरी मच एक्सेसिबल फॉर मल्टी कंट्री बेस्ड टाइप ऑफ अ फॉर्मेट. मतलब अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग कंट्रीज के एम्प्लॉयज को भी एक ही सिस्टम के अंदर हायर करके उनके लिए अलग से पेरोल रन कर सकता हूँ. आई डोंट हैव टू गो थ्रू अ हैसल की अलग से मेरे को एक सिस्टम चाहिए. बट मेरे को वो वाली फिजिबिलिटी भी इसके अंदर मिलती है कि अगर कोई इंडिया रिलेटेड एम्प्लॉय है तो उसका कनाडा टैक्स सिस्टम के अंदर चीज़ें सेम नहीं होंगी. ओके, दैट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. सो ये जो है मैंने डेमो टाइप का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया हुआ था. सो यू कैन सी लाइक यू कैन नॉट सेव एनी डिटेल्स रिलेटेड टू एनी कनाडा एम्प्लॉय if it can for any Canada info type related employee, अगर वो कैनेडियन अगर वो उसकी जियो लोकेशन कनाडा मेंशन नहीं है तो you can only save only India related info types and the common ones, the basic ones, the standard ones. Okay, so any doubt in this one? No, no, sir. So have you all of you guys have got an access to SAP now? Can you practice PA10, PA20, PA30, PA40 एज वेल एज जो मैंने पहले वाले सेशंस के अंदर बताया था कि /n से क्या होता है, /o से क्या होता है, /ex से क्या होता है, एंड SPRO T कोड से क्या होता है. कैन यू बी एबल टू प्रैक्टिस दोस T कोड्स? मैंने तो अभी मतलब सर सॉरी, ऑपरेट नहीं किया है जो सॉफ्ट हमारे तरफ जो है उसमें बोल रहे हैं ना. yes जो yes, can you सॉफ्टवेयर है. ask them to configure the software ASAP? देखो हर चीज के लिए मैं फॉलोअप नहीं ले सकता हूँ, करेक्ट? है मेरे पास, बट स्क्रीन शेयर करूँ मैं, आप देख सकते हैं. या प्लीज शेयर योर स्क्रीन. हेलो सर. यस साक्षी, यस शिवानी.
Sir, we are not able to install it, me and Manali. ओके, विजय सर से बात हुई आपकी No, sir. रिगार्डिंग दैट? नहीं सर, मेरी नहीं हुई है, मनाली की पता नहीं. ओके, आई ओके, या सो आप एक्सेस कर तो पा रहे हैं इसको? जूम इन करो. Whose system is this? Sakshi's? Yes. Yeah, can you zoom in? Yeah, can you, I mean, maximize the screen? Go into the view. No, no, go into the view. View. Yeah, full screen. Okay, this is full screen. Okay. Uh, okay. Okay, go into the SAP screen. There is a maximize tab over there. Try clicking maximize tab over there. Can you click this plus icon which is showing? Where is the plus icon, sir? कैन यू आस्क देम टू मैक्सिमाइज द स्क्रीन? अगर आपको देखो, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही हो उसको एक्सेस करने में वहां से डायरेक्टली, सो यू कैन आस्क देम टू हाउ टू मैक्सिमाइज द एसएपी पार्ट. Go यहाँ into पे तो the, नहीं दिख रहा plus. no, no, go into the menu tab. There's a menu bar over there. No, 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 not this one, not this one. Within SAP, within SAP. Yeah. Is it accessible or what? No, It's not accessible. Okay. no. So see, check with them कि problem क्या आ रही है. Ask them कि click on to this resume this virtual machine. Yeah. Now can you access? Yes. Yeah. So go on to the, yeah. I mean, see, you can again like ये जो home tab और Windows Server 2003 है इसको minimize कर दो. I'm not sure. इसको unpin कर दो ना. There must be an option to unpin it. नहीं नहीं, क्लोज नहीं, अनपिन करने के लिए कह रहा हूँ मैं. वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा. वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड. गो गो ऑन टू द लेफ्ट साइड. फाइल के आगे. लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, फाइल के आगे. फाइल के आगे. या देयर इज अ टैब फाइल के जस्ट लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. या, क्लिक ऑन टू दिस वन. हाइड द कमांड बार. या, सो नाउ इट्स हिडन एंड नाउ यू कैन प्रैक्टिस इट. देखो वो सर्च बार है, सर्च बार के अंदर जाके एक बार ट्राई करो. Enter SPR over there. SPR, hit enter. Yeah, hit SAP reference IMG screen. No, there is a tab, right? SAP reference IMG screen. Yeah, This one. yeah. Double click it. So see, now you can open the screen. Acha, go on to the search bar and do /n. Hit enter. Yeah, so now you're back to the home screen. अब देखो जहाँ पे आप SAP Easy Access मेनू स्क्रीन को एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स है. There is a Yes. field which is a human resource over there, right? Yeah, This one. go on to this one. Open this one. एक arrow sign है, right? Yeah. So now in this one you can open personal management, and now in this one you can then open administration.
And now in this one, you can open the HR master data. Now, can you see all of those details? Personal, action, Actions, maintain, डिस्प्ले. अच्छा देखो, इसका टेक्निकल नेम अभी मिसिंग है. मैंने क्लास में बताया था कि अच्छा एक्स्ट्रास के अंदर जाना, तो ऊपर 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 इन द मेनू टैब मेनू बार, top menu bar, there is a field which I think so, it's not clearly visible to me, but I think so it's extras. menu bar. Extras, there is a extras. No. नो, मेनू बार के आगे ही पास में राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रास है. राइट हैंड साइड. Right. Yes, करेक्ट. extras. So what is there? What are the options over there? Administration information, Hmm. display documentation, technical Click on details. to the display documentation. Click it, sir. किया भी कुछ नहीं शो कर रहा. Okay, वो it's actually getting loaded in the background. 1 second. Go into the settings. Settings. There is an option over there, settings, right? Extras के अंदर ही there is an option over there, settings. इसको पहले क्रॉस करो. In extras there is an option which is settings. Settings, yes. Yeah. अब वहां पे जाके डिस्प्ले टेक्निकल नेम करो. Display technical name. Yeah. Yes. So right click it. No. I mean there is a symbol over there, right? एक सिंबल है ना नीचे 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 Yes, नीचे yes, नीचे. yes. कंटिन्यू का. Okay. Now again do follow up that same process. Human resource के ऊपर जाके, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाके, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, yeah, administration, sorry, administration. Yeah, in administration, HR master data. HR master. Yeah. Now can you see the Yes. technical names? Technical names भी आ गए Yes. उनके. PA40. Yes. तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी उसको एक्सेस कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस मेनू पाथ अगेन एंड अगेन. आफ्टर लाइक वंस इन अ वाइल अगर आपकी 4-5 बार प्रैक्टिस हो जाती है तो यू कैन वेरी वेरी इजीली फॉलो इट इन दिस वे. शिवानी एंड मनाली, प्लीज कोऑर्डिनेट विद विजय सर और योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड यूवी टेक्नोक्रेट कि आपको वो सिस्टम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड विद द लाइव I will थिंग्स. connect with him tomorrow. या कुछ डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताना उसमें. ओके. हाँ हाँ sure. Okay. See, again, So I'm इसको telling you, it's not a rocket science. It's a very, very simple thing, very simple aspect. Just be vocal to me, जो भी आपकी difficulties आ रही हैं, and we could be able to achieve all of the things.